Law Scholar Independent Society works as a non-profit organization. It aims to organize different competitions for students. And it also provides online lectures for different subjects. बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे लोग अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं as participants and also as members. Coming on today's event. The child is endowed with unknown powers, which can guide us to the radiant future. If what we really want is a new world, then education must take as its aim the development of these hidden possibilities. So, with the words of Maria Montessori, today's topic is change in education policy, a new hope for India. To understand this topic in a better way, we have two experts with us, Dr. N.L. Sharma and Dr. Vinay Khandelwal. Dr. N.L. Sharma is the former principal of Bareilly College and Dean Faculty of Mahatma Jyotiba Phule, Rohilkhand University of Commerce. And he'll join us in few minutes. And we have Dr. Vinay Khandelwal, who is the Executive Director of Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. इन्होंने 19 साल की एज से ही एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था. And because of his great efforts that led to the establishment of KCMT College. And इस साल इनके कॉलेज ने 20 साल पूरे करे हैं. And for that LSIS team congratulate to you sir. और आपकी वजह से आज KCMT एक ब्रांड की तरह जाना जाता है. Now I would like to call the founder and president of LSIS, Mr. Paras Pradhan, who will today act as a moderator. Okay, thank you, Prerna, for your brief intro to the event. And first of all, I would like to wish good afternoon, everyone. Good afternoon to Vinay sir, and good afternoon to his team. And thank you for everyone to join us in just a little short duration of time, but we will try to give you a most and grateful information from our expert. So again, I would like to thanks to our expert, Dr. Khandelwal sir, Dr. N.L. Sharma sir. He will be join us in a few minutes. Okay, thanks and welcome to all the viewers on this application and our YouTube channel. So with the starting to today's event, I would like to request to all kindly mute yourself for the betterment of our event and for betterment of discussion. आज हम सिर्फ एक वेबिनार ही नहीं लेके आए हैं, बल्कि just it's a discussion with one of our finest and the famous academicians and directors of the college of North UP region. हमने different polls public के द्वारा from audience, from students, from their parents, from faculties, professors, advocates, अलग अलग जगह पे polls करवाना शुरू किए. Then about 1 month हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हमें जो पोल्स मिले उसमें कुछ टॉपिक्स सामने आ रहे थे जब से ये एजुकेशन पॉलिसीज न्यूज में थी, और उससे हमने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी. हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने कुछ टॉपिक्स निकाले. आज उन्हीं टॉपिक को एक ब्रीफ डिस्कशन लेके हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ उसको डिस्कस करने की कोशिश करना चाहेंगे. सो आइए उन्हीं क्वेश्चंस को अपने जो 3 टॉपिक से रिलेटेड हैं एक्सपर्ट के व्यू जानते हैं. We are starting our questions to one of the dynamic personality, Dr. Khandelwal sir. So we welcome you, sir. So we have the first question to Dr. Vinay Khandelwal sir. As according to new policy, what is the new education policy? How it is different from the oldest policy? I would like to narrate in Hindi also. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? ये पुरानी शिक्षा नीति से किस प्रकार से अलग है? Over to you, sir. Thank you, Mr. Paras Pradhan, the founder of Law Scholar Independent Society. Am I audible to you? Yes, sir. Clearly. Thank you. And thank you, Ms. Prerna, for introducing me. And thank you, Mr. Pradhan, for giving me this opportunity to speak at this forum before you. And I should say that it is very appreciable efforts by you
by Mr. Pradhan, because you have been a very good student of biotechnology and science, and you chose me to speak before you about this very important topic. So मैं अपने डेलिब्रेशन को करीब 15-20 मिनट का मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, सो दैट कि मैं क्रिस्प आपको अपनी बात बता पाऊं, और मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा मिक्स करके। तो बात आज का विषय जो आपने रखा है वो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में रखा है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व में अगर जाएंगे तो जो हमारी पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में जो की बनी थी, जिसको कहा जा रहा है कि आज ये पॉलिसी जो है लगभग 34 साल के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है। तो इससे पूर्व पॉलिसी 1986 में आई थी, और उस समय उस पॉलिसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। एजुकेशन पॉलिसी भारत में बनी हुई थी, उससे पूर्व में भी बनी थी, तो हर बार जब पॉलिसी आती थी तो उसको कहा जाता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मुख्य रूप से जो अब की बार जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका नाम रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो पहले रखते थे नाम उसको रखते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब उन्हें बोला जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये 1986 में जब पुरानी आई थी, उस समय आई थी। तो अब जो पॉलिसी जब भी कोई आती है, ये क्या होती है पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आज सब परिवर्तन हो गया? क्या कुछ पिछले हफ्ते जब 2 हफ्ते पहले जब ये आई, हमने कई दिन तक न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में देखा कि एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या एकदम से परिवर्तन हो जाएगा? क्या हो गया है? ये क्या होगा, क्या होता है? सब थोड़ा मैं आपको विस्तृत में शॉर्ट में बताऊंगा कि जब कोई एजुकेशन पॉलिसी इस प्रकार से जब एक आती है तो वो एक क्या होता है, वो एक लाइक अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोविजंस के माध्यम से बनाया कि वो अगले 20, 30, 40 साल के अंदर देश में एजुकेशन को क्या विजुलाइज करते हैं, उसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने अभी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो बनाया है वो उसको अपनी कैबिनेट से, अपनी जो तमाम विभागों से उसको अप्रूवल मिल गया है। और अब उसके बाद जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसके बाद आता है एक प्लान ऑफ एक्शन, कि वो प्लान ऑफ एक्शन कितने साल बाद आएगा। तो मैंने पूर्व में देखा था 1986 में जब पिछली बार ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका नाम है, तो उसके बाद लगभग उसके 6 साल के बाद प्लान ऑफ एक्शन आया था, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। तो आई डोंट नो पहले 6 साल लगे थे, अब कितने समय में होगा, बट ये प्लान ऑफ एक्शन के लिए जो कमेटी बनती है, स्टीयरिंग कमेटी, पिछले हफ्ते में वो बन गई है। और उम्मीद है कि जो इस पॉलिसी के जो प्लान्स हैं, लगभग सन 2025 तक कुछ प्लान्स इसके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और बाकी जो बैलेंस प्लान्स हैं सन 2030 तक ये पॉलिसी इंडिया में फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट हो जाने का विचार है सरकार का। तो मुख्य रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर मैक्सिमम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और ये हम सबके मतलब का विषय भी है। हर व्यक्ति पूछता है भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, और आप लोग काफी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं आपके, और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आगे जुड़ेंगे भी। तो ये डेफिनेटली मेरे माध्यम से, आप मॉडरेटर आपके माध्यम से, प्लस मेरे गुरु प्रोफेसर एनएल शर्मा जी जब ज्वाइन करेंगे उनके माध्यम से हम लोग काफी नजदीक से समझ पाएंगे, और बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में बात बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बदलाव जो इस एजुकेशन पॉलिसी में जो आया है, हम लोग सबने अपनी एजुकेशन पढ़ी है, तो हमने देखा है कि हम लोग ने 10+2 हमेशा सुना था। 10+2 मतलब 10 तक, 10+2 सिर्फ ऐसे हमेशा नहीं कहा जाता कि 12th, हमेशा कहा गया था, प्रोविजन बनाया गया था 10वीं तक एक पहला बोर्ड होगा, फिर 2 साल भैया फिर 12th में बोर्ड होगा। तो अब इसमें ये देखा गया कि पढ़ाई को केवल 12, जो माध्यमिक की एजुकेशन के जो मतलब जो भी पढ़ाई को माना गया है, पहले 12 साल तक माना जाता था कि 12th, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बात की जाए। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने प्री प्राइमरी जो होता है हमारा, जो कि हमारा नर्सरी, केजी और प्री नर्सरी, जो प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी, जो प्री स्कूल जो एजुकेशन होती है, उसको भी उन्होंने अपने फॉर्मेट में ले लिया है गवर्नमेंट ने। और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अब एजुकेशन को 15 साल में प्लान कर लिया है। पहले 12 साल का था, अब एजुकेशन गवर्नमेंट बात करती है 15 साल की, क्योंकि गवर्नमेंट का सोचना है कि हम जो बच्चा प्री प्राइमरी में भी स्टेज पर भी है, तो हम उस बच्चे की पढ़ाई पे फोकस करेंगे और वहां से हम बच्चे को डेवलप करेंगे। तो जो सरकार के, गवर्नमेंट के, जो हमारे देश का जो इस पॉलिसी का उद्देश्य, उसका बेटर फुलफिलमेंट होगा।
तो उन्होंने भी उस एजुकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहली एजुकेशन प्री प्राइमरी प्लस क्लास 2 तक की होगी, प्री एनसी, नर्सरी और केजी, क्लास 1 एंड 2। उसके बाद जो सेकंड पड़ाव है वो 3 साल का है, वो होगा 3rd, 4th और 5th क्लास तक। और फिर उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो भी 3 साल का है, वो होगा 6th, 7th और 8th। और जो अगला पड़ाव होगा, आखिरी पड़ाव होगा 4 साल का, वो होगा 9, 10, 11 और 12। हम लोग ने हमेशा सुना था कि 10th तक का एक पड़ाव पहले 6ठी तक होता था, 6ठी से फिर 10वीं और 12वीं। इन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और 12 साल को 15 साल में कन्वर्ट किया है पहली बार। तो इस फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्री प्राइमरी को अपने कंट्रोल में, अपने सुपरविजन में, अपने फॉर्मेट में ले लिया है। मुख्य रूप से ये जानने का विषय है। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के अंदर बहुत ज्यादा विषय के बारे में नहीं चर्चा की गई है, वो विषय मैं अभी आपको बताऊंगा। और 6ठी, 7वीं, 8वीं में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया और ये प्रयास किया गया है कि 6ठी क्लास के बच्चों के पढ़ाई के दौरान में ही उनको वोकेशनल एजुकेशन का उनकी एज के हिसाब से और उनके स्किल्स के हिसाब से उनको डेवलप किया जाए। और आपने ये बहुत पहले हमने सुना था कि महात्मा गांधी जी ने एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम को सजेस्ट किया था बहुत पहले पूर्व में, और जिसको वर्धा सिस्टम भी कहा जाता है। और इस बेसिक एजुकेशन सिस्टम में उनका फोकस यही था कि छोटे बच्चों को कम उम्र से ही एक वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और छोटे मोटे जो काम को सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि जीवन में वो बच्चे आगे बढ़ के एटलीस्ट, कई सारे उनके एम थे। सबसे पहला एम तो ये था कि डिग्निटी ऑफ लेबर बच्चा समझे। आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारी नई जनरेशन है, जो पीढ़ी है, बहुत सी चीजें वो छोड़ रही है या बहुत सी चीजें वो नहीं समझ पाती, वो खास तौर से डिग्निटी ऑफ लेबर को वो इग्नोर करते हैं। और तो महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था, लेकिन उस उद्देश्य के लिए भी आपको याद होगा, सुना भी होगा कि बहुत लोगों ने उसको क्रिटिक्स किया था कि अगर 6ठी क्लास के बच्चे को, क्योंकि इस एजुकेशन में महात्मा गांधी जी के जो वर्धा सिस्टम में भी और जो एजुकेशन पॉलिसी में अब आया है कि स्टूडेंट्स को 6th क्लास से ही इंटर्नशिप पे कराया जाएगा। हालांकि वो इंटर्नशिप बहुत कम पीरियड की है, बट इस इंटर्नशिप को अगर कराया जाएगा बच्चों को, तो लोगों का अपना अपना सोचना, लोगों का अपना अपना थॉट प्रोसेस है कि वो इंटर्नशिप हो सकता है कि बच्चों को बच्चों को चाइल्ड अब्यूज में भी कन्वर्ट ना हो जाए। बट इस एजुकेशन का ये उद्देश्य है, अभी जो बताना चाहूंगा, कि 6ठी क्लास के बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी वोकेशनल सब्जेक्ट में, जो कि उनके इंटरेस्ट के होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंस्पायर्ड हुआ है महात्मा गांधी जी के बेसिक एजुकेशन सिस्टम से, जिसे कि वर्धा सिस्टम के अंदर कहा जाता है। और उसका उद्देश्य यही था कि डिग्निटी ऑफ लेबर और बच्चों के अंदर थोड़ी सी अपनी, जैसे कि छोटे छोटे काम, जैसे कि उस समय में वो सजेस्ट करते थे कि पॉट मेकिंग हो गया, और वो पेंटिंग हो गया, लोकल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर है, हैंडीक्राफ्ट है। छोटे बच्चों को कम एज से ही थोड़ा थोड़ा सा सिखाना, अगर सीखना शुरू कर देंगे बच्चे, तो आगे बच्चे जाके तरक्की करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा नौकरी करेगा, वो सेल्फ सस्टेनेबल भी बन सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो इस सिस्टम का है, 10+2 को जो उन्होंने डिवाइड किया 15 साल में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि आपने सुना होगा इन दिनों में भी कि बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को अलाउ किया गया है। अगर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे आर्ट्स के और साइंस, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने को नहीं मिलते थे, म्यूजिक पढ़ने को नहीं मिलता था, या आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ने को नहीं मिलता था। लेकिन जो अपकमिंग एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस बात को उन्होंने कॉम्बिनेशंस चेंज किए हैं। फिजिक्स का स्टूडेंट चाहेगा तो वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, वो कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। ऐसी कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर वो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहता है तो उस कॉम्बिनेशंस को, ऐसे कॉम्बिनेशन अवेलेबल कराए जाएंगे जिससे कि बच्चे जो है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण एजुकेशन पॉलिसी है वो है भाषा, लैंग्वेज। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि अभी तक सबसे ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक रहा है कि इसको कैसे अचीव करेंगे। हमारे देश में जब एजुकेशन, पिछली एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पे रखा गया, एक वर्ड है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि हम लोग एजुकेशन, जब बीए डिपार्टमेंट की पढ़ाई भी होती है तब भी 3 एजुकेशन फॉर्मूले को डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर
3 लैंग्वेजेस जो है स्टूडेंट को अपनी लाइफ टाइम में पढ़नी होती हैं। एक उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़नी होती है, पढ़नी चाहिए रादर, ये सजेशन है, और एक फॉरेन लैंग्वेज और इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। सो पिछले कितने भी सालों से हमारे देश में इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूलों का 100% इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि जब फॉरेन लैंग्वेज की बात आती है तो सबसे पहले आंखों में, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर मी अ फॉरेन लैंग्वेज इज फ्रेंच और जर्मन, बट जनरली लोगों ने इंग्लिश भाषा को फॉरेन लैंग्वेज मान के इंग्लिश भाषा को पढ़ना शुरू किया। रीजनल भाषा जैसे कि तेलुगु या मलयालम या कन्नड़ या बंगाली वहां चल रही है, वो कर रहे हैं। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज को अगर करा गया तो अभी तक इसमें हिंदी का लोग अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं कि हिंदी उनकी मातृभाषा है तो हिंदी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उर्दू पढ़ लेते हैं, कुछ लोग पंजाबी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आज तक भारत में प्रॉपरली वही इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। उन्होंने कहा गया है कि हमारे देश में पूर्वजों से पास्ट में देखा गया तो संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और संस्कृत ही सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में वेदों में, पुराणों में और हमारे पास्ट में पूर्वज में कहा गया है कि संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा रही, परंतु धीरे धीरे उसने अपना जगह वो खो गई। तो इस नई पॉलिसी का उद्देश्य सरकार का, गवर्नमेंट का, एजुकेशन सिस्टम का ये है कि हम लोग संस्कृत को वापस जीवित करेंगे और अपने सिस्टम में लाएंगे। इसीलिए संस्कृत भाषा को क्लास 8 तक कंपलसरी कर दिया गया है। और लोकल लैंग्वेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि जो इसका जो पॉइंट दिया गया है वो ये है कि जो भी किसी भी प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हो या रीजनल लैंग्वेज हो, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा क्लास 8 तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए किसी ने पूरे मतलब पूरी अपनी पढ़ाई 8th क्लास तक की, कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ ये कहा गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि वो उसकी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में होगा 8th क्लास तक। मतलब अगर वो साइंस पढ़ेगा, बच्चा हिस्ट्री पढ़ेगा, कॉमर्स और ये मैथ्स पढ़ेगा, तो वो मान लीजिए बच्चा बंगाल का है तो बंगाली में पढ़ेगा, वो तमिल में तो तमिल में पढ़ेगा, तेलुगु में पढ़ेगा, कन्नड़ में पढ़ेगा, बच्चा अलग अलग क्षेत्रों में ये सब पढ़ेगा 8th क्लास तक। और इंग्लिश और जो हिंदी है वो उनके एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डिसीजन है, और ये क्योंकि मैंने कहा ना कि पिछला ही अभी तक देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो आई डोंट नो हाउ विल द लाइक पॉलिसी मेकर्स विल डू दिस परमानेंट चेंज, बट इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी बताऊं। क्योंकि देखिए आज के तारीख में भी भारत में हम लोग भारतीयता की बात करते हैं और हिंदी लैंग्वेज के जोर सपोर्टर भी हैं, तो भारत में आज तक हिंदी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई है, क्योंकि हमारी वो राष्ट्र भाषा जो होनी चाहिए, वो राज्य भाषा तो है ठीक है हमारे यहाँ, लेकिन राष्ट्र भाषा नहीं हो पाई है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो एजुकेशन पॉलिसी परिवर्तन के लिए कहा गया है वो है बोर्ड एग्जामिनेशन के संबंध में। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के संबंध में कहा गया है कि इन्होंने पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न सिस्टम जो है चेंज करने के लिए आगे करा है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न समय समय पे परिवर्तित होते रहा है। कि पहले भी अगर आपने सुना होगा कि 10 सालों में चेंजेस हुए हैं, कि हमारे यहाँ ग्रेडिंग परसेंटाइल सिस्टम में चेंजेस हुए हैं, हमारे यहाँ 10th क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का या आए हैं काफी सारी चीजें। बट अब उन्होंने क्या किया कि 10th क्लास को रिमूव कर दिया है, 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन को रिमूव करने का प्रपोजल किया है। और ये जो करने का उद्देश्य है उनका ये है कि वो केवल 12th क्लास में ही बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, और उसमें भी एक उन्होंने प्रावधान किया है कि अगर स्टूडेंट चाहेगा तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन एक से अधिक बार दे सकता है। जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन में कई बार इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं एग्जाम को दोबारा देना, तो इसका भी उन्होंने दिया। तो मेरा उद्देश्य कहने का तात्पर्य गवर्नमेंट ने इस इवैल्यूएशन पैटर्न को चेंज करने का उद्देश्य उनका ये है कि जो बच्चे एग्जामिनेशन रट के देना चाहते थे या देते थे उसको एबॉलिश करना चाहते हैं, और वो एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो कि उनकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को इवैल्यूएशन करे, रादर देन उनके राइटिंग स्किल्स का इवैल्यूएशन करे, और उनकी आंसर कॉपीज में क्या उन्होंने लिखा है उसका इवैल्यूएशन करे। हालांकि इसके अंदर उन्होंने एक और प्रपोजल दिया है कि जो एक चैलेंज भी है, इशू भी है, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगी तो वो अपने कक्षा 3, 5 और 8
3rd, 5th और 8th क्लास में अपने प्लान्स और अपनी सुविधा के अनुसार वो सेपरेट स्टेट लेवल पे बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के से कोई सरोकार नहीं होगा, मुख्य रूप से ये कहा गया है। एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस सर। सर एक क्वेश्चन आपकी बातों से सर ये निकला और थोड़ा हमारा पोल से भी ये है कि अगर ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी थी जिससे हम लोग पढ़े हैं, जिससे हम लोग के सीनियर्स पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, हम सभी पढ़े हैं, अगर वो एक स्तंभ के रूप में इफ इट इज प्रूव्ड एज अ पिलर ऑफ द नेशन, देन सर 34 ईयर बाद उसमें एक इम्प्लीमेंट या फिर उसे पूरी तरीके से एबॉलिश करके न्यू पॉलिसी अमेंड करने का इसके पीछे सर कोई एक व्यू हो प्लीज सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो जैसे ये कहा जा रहा है बार बार कि 34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ऐसा नहीं है। पारस की 34 साल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 34 साल के अंदर पिछली एजुकेशन पॉलिसी जो भी अडॉप्ट की गई थी, देखिए एजुकेशन पॉलिसी का आप महत्व समझिए। मैकॉले जो भारत में आए तो उन्होंने भारत को बहुत नजदीक से देखा, ठीक है, उन्होंने भारत को के अंदर ट्रेवल किया, आवास ली और उनको भेजा ही भारत के अंदर सब कुछ चेंज करने के लिए भेजा गया था जब विदेशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो उन्होंने क्या लिखा कि अगर भारत समाज को तोड़ना है या उनको बर्बाद करना है तो इनके लॉ सिस्टम को तोड़ दो, इनके लॉ सिस्टम को पूरा चकनाचूर करो। तो मैकॉले ने क्या किया था कि उन्होंने इंडियन पेनल कोड और तमाम लॉज बनाए। मैकॉले ने अपने उसमें लिखा हुआ है कि भारत समाज को अगर और बर्बाद करना है, उनको तहस नहस करना है, तो भारतीय शिक्षा पद्धति को भी पूरा तोड़ मरोड़ दो, उससे खत्म कर दो। क्योंकि अगर शिक्षा पद्धति किसी देश की खराब अगर तोड़ मरोड़ दी जाएगी तो वो देश समाप्त हो जाएगा, और अगर शिक्षा पद्धति परिवर्तित कर दी जाएगी तो देश तरक्की करेगा। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि मैकॉले ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय गुरुकुल सिस्टम था, जहां गुरु शिष्य परंपरा होती थी। शिष्य लगभग 20 से 25 साल तक जो है अपने गुरु के संरक्षण में पढ़ता था और वहां पर ब्रह्मचार्य रखता था। वो देश की संस्कृति, वो नैतिकता की एजुकेशन, व्यवहारिकता की एजुकेशन और गुरु शिष्य परंपरा को समझता था। तो ये जो हमारी पूर्व में पॉलिसी थी, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो हमारी गुरुकुल सिस्टम था, वो अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में जब एजुकेशन, अंग्रेज गए, लेकिन आपने कहते हैं ना अंग्रेज चले गए लेकिन बहुत सी चीजें छोड़ के चले गए। सबसे बड़ी बात तो वो कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के चले गए थे, वो अंग्रेजियत को बढ़ावा देके चले गए थे। जबकि हम लोग जो है हमेशा अपनी संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। तो जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुई है। प्रतिदिन साल प्रति साल उसके अंदर गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने परिवर्तन किया है, चेंजेस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए पारस जी, आज के समय में क्या है कि देश और विश्व जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और जिस हिसाब से अब भारत को आगे फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन भारत एक विकसित देशों की तरफ तरक्की कर रहा है, तो उसको बहुत व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसीलिए हमारी सरकार ने ये अपना जो एजुकेशन पॉलिसी को परिवर्तन का जो प्रपोजल है, बहुत शीघ्रता से, बहुत समय पे उन्होंने चूज किया है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम पॉजिटिव निकल के आएगा। एजुकेशन खराब तो मैंने जो कहने का उद्देश्य ये था कि मैकॉले ने शिक्षा को बर्बाद करने के बारे में, भारत को बर्बाद करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। हमारे देश के अब जो नई सरकार है वो एजुकेशन के माध्यम से देश को तरक्की के रास्ते पे और लाना चाहती है, जो फ्लॉज है उसको रिमूव करना चाहती है, भारतीयता को बढ़ाना चाहती हैं, अपने देश प्रेम की भावना को जगाना चाहते हैं। हमारी जो वैल्यूज थी, हमारे जो संस्कार थे, हमारी संस्कृति से या संस्कृत भाषा से लगाव था, मातृभूमि देश से लगाव था, मातृभाषा से लगाव था, इसको वापस लाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से जो है पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बाद 34 साल लग गए नई तक आने में, और पिछली बार इतने साल के बाद इम्प्लीमेंट आधी से ज्यादा हो नहीं पाई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अब ये एजुकेशन पॉलिसी आई है वो डेफिनेटली वो जो भी चाहते हैं उसे पूरा करेंगे। ओके सर, इसमें एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो मैं शेयर करना चाहता था कि जो इसी जो अपकमिंग एजुकेशन पॉलिसी है वो मिस हो जाएगा। जो मैंने इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रखा है इन्होंने
कि उन्होंने रखा है कि उन्होंने मोर फोकस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम पे रखा है, जिसके अंदर 3 इयर्स के ग्रेजुएशन कोर्सेज को वो प्रमोट करके या वो ट्रांसफॉर्म करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट चाहती है लाना। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि इजी एंट्री और इजी एग्जिट सिस्टम को अलाउ किया है, जिसके अंदर जब पहले साल में बच्चा 1 साल कोई कोर्स करता है, ग्रेजुएशन करने आता है, अगर मान लो 1 साल करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं चाहे किसी भी कारण से, तो वो उस समय क्या होता था, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था। लेकिन सरकार का उद्देश्य था कि आपने जितनी पढ़ाई करी है, जितना पैसा खर्च करा, जितनी आप में काबिलियत है, अगर आपके हाथ में वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट, वो एडवांस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं जॉब पाने के हकदार बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के चक्कर में रुक जाते हैं। और हमारे देश में जो व्यापक स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इसीलिए होता है कि उसके हाथ में डिग्री नहीं होती, क्योंकि डिग्री के बेस होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सर्टिफिकेट जो है वो इशू मिल जाएगा उससे। अगर 2 साल का हो जाएगा तो एडवांस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, 3 साल का होगा डिग्री उसे मिलेगी, और 4 साल कर लेगा तो डिग्री विद रिसर्च उसे मिल जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट ये परिवर्तन उन्होंने करने के लिए कहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सॉरी सर फॉर अगेन डिस्टर्बेंस। जस्ट हमारे पास लास्ट 7 मिनट्स के आसपास हैं जूम एप्लीकेशन के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो जस्ट हमारी तरफ से सर एक लास्ट, तो मैं बस समराइज करता हूँ उसे। जी मैं समराइज कर देता हूँ कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, जिससे कि आपको जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ओके सर। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में बताया गया है, और अंडर ग्रेजुएट के बारे में बता ही दिया है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी की कुछ अच्छाइयां भी हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में सोचा गया है सरकार ने, और हमारा कल्चर इस पे रोका जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है, और हमारी मातृभाषा, मातृभूमि, मातृभाषा के बारे में बार बार कहा गया है। और क्या कहते हैं, जैसे इसमें क्या है, इस एजुकेशन पॉलिसी में ज्यादा फोकस करा गया आउटसाइड द क्लासरूम एजुकेशन के बारे में, जिसमें मोर वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप पे फोकस किया गया है। और हमारी एजुकेशन जो है आगे चल के रोजगार परक शिक्षा हो जाएगी, वो भी 6ठी क्लास से, जिससे कि छात्र जो है 6ठी क्लास के बाद से ही थोड़ा सा सीखेगा, थोड़ा समझेगा। तो उससे क्या होगा, जब आगे बढ़ के वो बच्चा बड़ा निकलेगा 12वीं का, तो वो आत्मनिर्भर, जो गवर्नमेंट चाहती है, मोदी जी का चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा देश आगे बढ़े, तो वो बच्चा उस तरीके से बढ़ेगा और बच्चा अपना मास्टर ऑफ हिज ओन सेटअप का हो जाएगा। और तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉजिटिव चीजें हैं इसके अंदर, और कुछ डिमेरिट्स भी मैंने इसके अंदर देखी हैं, जो मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल सर, हाँ 2-3 मिनट्स सर प्लीज। ओके सर। हाँ जी। तो क्योंकि इसकी डिमेरिट्स भी इसके अंदर ये है कि अभी तक जो है क्योंकि ये एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट की, तो जरूरी नहीं है हर स्टेट इस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करे। अच्छा, ये अगर प्रोग्राम अभी एक बंद हो जाएगा तो दूसरा लिंक जो दिया है उस पर दोबारा लॉग इन करना होगा क्या? हाँ जी सर, सबसे रिक्वेस्ट भी यही है पार्टिसिपेंट से हमारी कि वी हैव 2 स्पीकर्स सर बोल रहे हैं हमारे साथ अभी ज्वाइन है, एटलीस्ट हमारे पास 4 to 5 मिनट्स हैं। देन हम फर्स्ट अपने पीरियड का सेशन का एंड करके सर के साथ, फिर देन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3 o'clock आप लोग मतलब 3 PM से आप लोग जो हैं वो सेकंड मीटिंग के लिए ज्वाइन हो जाएं, जिसमें हमारे साथ सेकंड स्पीकर भी होंगे और साथ में खंडेलवाल सर भी होंगे। प्लीज सर, ओवर टू यू। ठीक, तो मैंने अभी बताया था दूसरी कमी रहेगी या चैलेंजेस रह लीजिए कि 3 जो लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है कि वो अभी तक पहला ही पिछली बार का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आप इमेजिन करिए कि एक ही देश के अंदर जब बच्चा रीजनल लैंग्वेज के अंदर जब सब्जेक्ट्स को पढ़ के आएगा तो क्या स्थिति होगी। अभी हम अपने स्कूल कॉलेज में देखते हैं जब हमारे 2 बोर्ड होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, और एक क्लास में 2 तरीके के बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं ग्रेजुएशन के अंदर। कुछ बच्चे इंग्लिश की किताबों से पढ़ के फिजिक्स पढ़ के आए हैं, कुछ बच्चे हिंदी किताबों से फिजिक्स पढ़ के आए हैं। तो अध्यापक को और टीचर को पढ़ने और पढ़ाने में कितनी तकलीफ होती है। मान लीजिए कि किसी जगह पे एक ही देश के अंदर कोई बच्चा नॉर्थ का, साउथ का भी आया और कन्नड़ पढ़ के आया, तेलुगु पढ़ के आया और फिजिक्स कोई, वो एक क्लास के अंदर अलग अलग भाषाओं के बच्चे जब बैठे होंगे, वो 9वीं 10वीं क्लास के अंदर वो अध्यापक कैसे बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे वो कंटेंट बनेंगे, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऑप्शन जब हम बहुत लोगों को दे देते हैं ना, तो देखिए चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। हम लोगों की आदत है कि हम लोग हमेशा डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, तो अगर एक सिस्टम में हमें कोई काम दिया जाए तो परफॉर्मेंस ज्यादा आती है। हम सबको, मान लीजिए इस ग्रुप के अंदर भी हम सबको अधिकार दे दें, अभी आपने सबको म्यूट कर रखा है, सबको बोलने का अधिकार दे रहे हैं, तो मैं अपनी बात नहीं बोल पाऊंगा, सब लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा?
तो ये समझने का विषय है। और इजी एंट्री और इजी एग्जिट से बड़ी चैलेंजिंग आने वाली, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बच्चे ने 1 साल में एक पढ़ाई करी, सर्टिफिकेट ले गया, फिर उन्हें 1 साल छोड़ सकता है बच्चा, फिर 1 साल बाद वो सोचता है चलो मैं पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ, वो फिर आ जाएगा 2 साल के बाद। तो वो जो नॉलेज उसने 1 साल पहले ली थी वो और बीच का गैप होगा, फिर आगे आएगा, तो कितना डिस्टर्बेंस हो जाएगा एजुकेशन के अंदर। वो जो पढ़ाई उसकी 4 साल में है, हो सकता है वो 6 साल में 8 साल में कंप्लीट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा इस पॉलिसी के माध्यम से। एक और इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी अलाउ करा गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडियन कैंपस में इंडिया में डेवलप करने के लिए अलाउ करा गया है, लेकिन केवल उनको मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए अलाउ करा गया है। तो ये एक चैलेंज आएगा भारतीय संस्थानों के अंदर, क्योंकि फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी जब इंडिया में आएंगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। और यू नो व्हाट कि एक सिर्फ कुछ पैसे वाले, कुछ अमीर लोग फॉर एजुकेशन के अंदर जाएंगे और कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ बच्चे ऐसी उस एजुकेशन को लेने में शायद पीछे रह जाएं। और तो मुझे लगता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो इस एजुकेशन पॉलिसी मैंने देखा है, हमारे देश की 70 से 75% एजुकेशन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। प्लेयर्स मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। बट इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहीं पर भी उनके स्टेक के उनके बारे में कहीं पर भी कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात नहीं लिखी है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या ऐसा करा है सिस्टम के अंदर। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब ये इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को और सिर्फ वाइस चांसलर्स को लिया है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी नहीं लिया है। जबकि 70-80% एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है, तो एटलीस्ट उनका रिप्रेजेंटेशन भी इस एजुकेशन पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान में देना चाहिए था। बट चूंकि गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत दूरगामी परिणाम की वजह से ही ऐसा कुछ दिस एजुकेशन पॉलिसी का ये बनाया होगा। तो लेट्स सी, हम लोग थोड़ा और वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या नया होना है। तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है टाइम शॉर्ट है। पारस, आप कुछ बोलिए, सुनते क्या कह रहे हैं। एक्चुअली सर जस्ट हमारे पास 2 मिनट्स हैं, तो जस्ट मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा। ये हमारी टीम की तरफ से ही है सर, और पूरी टीचर्स एक फैकल्टी की तरफ से या फैकल्टी की तरफ से मान सकते हैं। जस्ट आप जस्ट शॉर्ट में हमें 1 मिनट में कोशिश करिए कि जवाब दे दें कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बना तो दी गई, इसे अमेंड भी कर दिया जाएगा कुछ आने वाले सालों में, या 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, लेकिन सर इसको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं हमारे पास वो तो आज भी वही पुराने हैं, या तो आप हैं या हम हैं, या जो हमारे अब तक एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे सर? प्लीज 1 in 2 लाइन प्लीज। डेफिनेटली, जब ये मैंने कहा ना कि हमारे देश को इस समय हमारा देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है माननीय मोदी जी के कमांड में, वहां पर स्वदेशी, आत्मनिर्भर, वोकल, लोकल, इस सारे विषय पे चर्चा ज्यादा हो रही है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारा देश तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, हमारा देश डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहा है। हमारा देश में अब मैक्सिमम डिफेंस के इक्विपमेंट भारत में बन रहे हैं। हमारे देश में DRDO अपना बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो ये जो मानसिकता है, गवर्नमेंट की सोच है, वो एक व्यापक परिवर्तन लाने की है, बहुत वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग देखिए, गवर्नमेंट लगातार टैक्स रिफॉर्म ला रही है, रिफॉर्म्स हर जगह ला रही है। सो मैं सोचता हूं कि हमें जब ये पॉलिसी बन रही है तो उसी हिसाब से हमारे शिक्षक और अध्यापकों को परिवर्तन आएगा। बाजार में डेफिनेटली कंटेंट की बहुत शॉर्टेज है। जब क्षेत्रीय और रीजनल लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा तो उनको आवश्यकता पड़ेगी किताबों की भी। तो ये काम भी तभी का ना, ये एक दिन का काम नहीं है, 5 साल 10 साल लगेंगे पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में। हाँ, परिवर्तन आएगा। हम आप जैसे लोग जिनको आज लग रहा है कि हमें परिवर्तन देश में लाना है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो आप बात कर रहे थे कि इस समय स्वदेशी की जो मैंने बात रखी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री या हमारे देश में आप देखा होगा मिशन बस मैं इसी बात को, ये सब बातें रखूंगा कि एजुकेशन पॉलिसी या सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स मैंने आपको बताई, कुछ डीमेरिट्स पे मैंने चर्चा की।
कि मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बार बार इसी बात को रहूंगा कि हमारे देश में देखिए सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण हायर एजुकेशन में हो रही है वो हो रही है IITs, IIMs, ट्रिपल IITs। ये देश के वो सर्वोच्च संस्थान हैं जिनका प्रेजेंट सिनारियो में भी और पूर्व में भी फुल यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा। व्हाट आई वांट टू से इज दिस कि हमारे देश का 70% एजुकेशन का बजट लगभग इन इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग में लग जाता है। इतने साल इनकी बड़े बड़े संस्थाओं की एग्जिस्टेंस हो गई है, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े संस्थान सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाए आज तक। ये सारे संस्थान सरकार से एड लेते हैं, सरकार से पैसा इन पे खर्च होता है और पैसा टैक्स पेयर का पैसा खर्च का होता है इन संस्थाओं को व्यवस्थाओं में। जबकि मान लीजिए हमारे देश के 70% 75% प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज हैं। ये लोग तो अपने खर्चे से चला रहे हैं, अपने स्रोतों से अपने संस्थान को डेवलप कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? तो जैसे ये संस्थान कर रहे हैं वैसे ही अब समय आ गया है कि इन संस्थानों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहिए, इनकी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात जो कि कहीं भी इस पे जिक्र नहीं है वो ब्रेन ड्रेन का है कि कैसे हमारे देश से टॉप का जो बेस्ट ब्रेन्स है वो भारत से चला जाता है, इन टॉप के इंस्टीट्यूशन से चला जाता है और वो विदेशों में जाके जॉब्स और नौकरियां करते हैं। तो इस पे चर्चा भी होना बहुत आवश्यक है कि जो इन टॉप इंस्टीट्यूशन से बच्चा निकल के जा रहा है वो भारत में ही रहे और भारत के लिए ही सेवा करे। तो शायद हम लोग के जो विजुअलाइजेशन सरकार चाहती है एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, वो हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो और जिस दिशा और डायरेक्शन में हम लोग जाना चाहते हैं वो हम सही जगह पहुंच पाए। Okay. ठीक है पारस। Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir, for your precious word, for your precious timing to us. Just again, our LSIS team is apologize for the disconnection. Automatically, sir, हो गया था due to time barrier. And thank you so much, sir. We always pray, sir, कि जब भी हम आपको request करेंगे तो आप LSIS के साथ सर जुड़ने की बिल्कुल हमारे साथ कोशिश करेंगे सर। नहीं, मेरे पास बहुत कुछ अच्छे टॉपिक्स भी हैं पारस जी जो कि यूथ को पसंद आएंगे और मैं आप मुझे अगर आगे मौका देंगे डेफिनेटली आई विल शेयर माय व्यूज विद देम टू मोटिवेट देम एंड इग्नाइट देम। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अगेन प्रेरणा, ओवर टू यू, प्लीज कॉल सेकंड स्पीकर। Education of even a very small child does not aim at preparing him for school, but for life. The new educational policy also aims at the same. And to understand it, we have a second speaker, a Guru Vashisht Puraskar awardee, Dr. N.L. Sharma. ये बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल और MGPRU के डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं। इन्होंने 6 बुक्स ऑथर की हैं और इन्हें 20 पितामह ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है। इन्हें 55 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू प्लीज कंटिन्यू इट। Okay, I would like to request to Sharma sir, so please join us. Very good afternoon, sir, to you. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay. So thank you very much. प्रणाम सर, चरण स्पर्श। मेरे भैया बहुत आशीर्वाद। वंडरफुल वंडरफुल। यानी आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको देख के बिल्कुल हृदय से गदगद हूँ मैं। और आप तो खैर भीष्म पितामह हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं आपकी वजह से। और इस पारस प्रधान ने देखिए गुरु शिष्य को साथ में मिला लिया। हम लोग मिल नहीं पा रहे थे दिन से, देखिए हम आपके दर्शन हो गए।
Sir, I Sir. am also your student, sir. Thank you very much. Parasi, I immediately start with one observation. ये कहा जाता है कि a father is very happy when his son surpassing him, and a teacher is always happy when his own student surpasses him. So I'm really fortunate that Vinay Khandelwal, who was your first speaker, he is so wonderfully now motivating the students by his words of wisdom that I'm proud of saying that I have been his teacher. This is a proud privilege of mine that he recognizes that I have been his teacher. That is his grace. Anyway, so I congratulate the Law Scholar Independent Society for organizing a wonderful webinar on the topic new education policy, because it is everybody's concern, but in a real sense it is the concern of the youth of the country, because they are the person who are going to be affected by the impact of new education policy. So हम आजादी के बाद कुछ समय के लिए एक पॉलिसी बनी थी which could not be said an education policy. कुछ हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, आप बच्चों को तो याद भी नहीं होगा, तब एक लिपि में परिवर्तन हुआ, छोटी की मात्रा जो बाएं हाथ से लगती है वो भी दाएं हाथ से लगने लगी थी, और आधा आधा लगती थी, पूरी मात्रा होती तो पूरा डंडा खींचता था. खैर दैट इज द पास्ट. उसके बाद आपने देखा इंदिरा गांधी जी के जमाने में 1968 में एक पॉलिसी आई, then one policy in 1986 while Rajiv Gandhi sir he was the prime minister, और उसको 1992 में पीवी नरसिंह राव साहब जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसमें कुछ मोटे मोटे रिविजन्स किए, लेकिन टेक्निकली वो 1986 की शिक्षा नीति ही रही. 34 साल के एक लंबे अंतराल के बाद इस गवर्नमेंट ने एक नई शिक्षा नीति घोषित की, और जैसा उसके प्रणेता लोग क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, फ्रॉम अब्रॉड 2-2.5 लाख लोगों से सम्मतियां ली, राय ली, विचार विमर्श हुआ. दिल्ली में 2 बार मेरा भी जाना हुआ, तो इस लोगों से राय लेने के बाद वो एक कंसेंसस बना, और उसके बाद में कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में एक पॉलिसी ड्राफ्ट हुई जो अभी 29 जुलाई को सरकार ने हमारे सामने रखी. इट इज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी. वर्चुअली drastic changes in the education policies have been implemented. एक तो बड़ा सीधा सा हम लोगों को जो लगता है, the name of the ministry is changed now. Earlier it used to be Ministry of Human Resource Development and now it is शिक्षा मंत्रालय. मैं जब कभी भी पहले बोलता था तो मैं कहता था कि इस जमाने में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई. एक, जो ह्यूमन बीइंग है, जो प्राणी है, उस बेचारे को रिसोर्स बना दिया गया. प्राणी का रिसोर्स बन जाना कितनी बड़ी दुर्घटना है, ये आप लोग तब समझेंगे जब आपके मस्तिष्क में एक बड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि संसाधन की अपनी विशिष्टता है. संसाधन अपने आप ना निर्णय ले सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है. संसाधन किसी के हाथ के प्रयोग करने का उपकरण होता है. तो आदमी को संसाधन बना दिया गया, और उसके बाद शिक्षा में वो सब कुछ किया गया जिससे को बेहतर मानव संसाधन बन सके. अर्थात हमने नौकर बनाने की शिक्षा प्रणाली बनाई, जिससे कि हम उन्हें बेहतर ह्यूमन रिसोर्स यानी के नौकर यानी के सर्वेंट, अर्थात अपने मालिक का हुक्म बजा लाने वाला ताबेदार बना सके. तो ये उस शिक्षा प्रणाली का जो अंतर्निहित बात थी, इसमें हमने मिनिस्ट्री का नाम बदल के ह्यूमन, तो ये केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं था, ये भावों का बड़ा जबरदस्त परिवर्तन था. आई एम हैप्पी दैट अगेन इज रीनेम्ड एज शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा 2 अक्षर का एक शब्द है. शिक्षा का मतलब, शी का मतलब होता है कि ये लोगों को शिष्ट बनाती है, और दूसरा क्षा है, उसका मतलब है ये लोगों का छात्र तेज जगाती है, उन्हें दब्बू नहीं बनाती, उनमें अभय की प्रवृत्ति लाती है. वो अपने आत्म गौरव को पहचानते हैं, वह आगे बढ़कर पहल लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अधिकार
के लिए लड़ने के लिए शाब्दिक ही नहीं बौद्धिक ताकत भी होती है। तो शिक्षा जो है, लेकिन वो लड़ना भी शिष्टता के दायरे में। तो शिक्षा, विवेकानंद जी कहा करते थे, शिक्षा वो है जो व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, जिससे ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोज सकता है और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर हो सकता है। बड़ी अच्छी परिभाषा विवेकानंद जी एजुकेशन की दिया करते थे। एजुकेशन इज द इमेंसिपेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन। हर आदमी में एक पूर्णता छुपी हुई है, उसकी उस पूर्णता को उजागर करने वाली जो पॉलिसी, जो हमारी वो है प्रविधि, उसी का नाम शिक्षा है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट, डिवोटेड, गुड, डिसिप्लिन, ये लोग जो हैं कई पेड़ों पर नहीं लगते। नाइदर दे आर प्रोड्यूस्ड इन एनी फैक्ट्री नॉर दे आर ग्रोन इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इन सबको बनाया जाता है शिक्षण संस्थानों में। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मनुष्य निर्माण की प्रयोगशाला कहा जाता है। These are the laboratories, वहाँ जहाँ क्या बनता है, जहाँ मैन बिल्डिंग होता है, आदमी बनाया जाता है। और वो जो आदमी है, वो मुख्य बातें उसकी आदमी की 4 हैं। पहली बात ये कि उसका चरित्र होगा, हम चरित्रवान व्यक्ति बनाते हैं, हम विद्वान दूरदर्शी बनाते हैं, हम समस्याओं को पैदा करने वाला नहीं, समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति बनाते हैं। तो एजुकेशन जो है दैट इनकलकेट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द पर्सन। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, और सबसे बड़ी बात, हम उसे जीवन का व्यवहार सिखाते हैं, जिसे कहते हैं हम लाइफ मैनेजमेंट। पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे आदमी में एक बड़ा मोटा सा अंतर माना जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी अपने जीवन का प्रबंधन करना जानता है। प्रबंधन का मतलब है वो अपने पास उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके सबसे बढ़िया रिजल्ट लेना जानता है। मैनेजमेंट की यही परिभाषा दी जाती है, मैनेजमेंट इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रिसोर्सेज इनटू रिजल्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। मगर ये सारी योग्यताएं, दूसरों से काम कराने की योग्यता, लीडरशिप की योग्यता, हम अपने साधनों को कैसे अपने परिणामों में बदलें, रिजल्ट्स व्हाट वी वांट एंड रिसोर्स व्हाट वी हैव, तो हैव से हम अपने रिजल्ट की ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जिस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं उस प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति में निश्चित रूप से देश के भाग्य को बदलने का एक बड़ा संकल्प दिखाई देता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये किसी राष्ट्र की आपको किसी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक पद्धति बदलनी हो, तो उसमें केवल आपको एक ही काम करना है कि आप शिक्षा प्रणाली को बदल दीजिए। जब कभी मैकाले ने इस देश को बहुत अंडररेट करने का प्रयास किया, तो उन्होंने एक ही काम किया था, वो पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने देखा कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बड़ी सुदृढ़ है, गांव में बड़े अच्छे स्कूल हैं, जहाँ लोगों के आपस के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक जज ने एक चपरासी के पैर छुए कोर्ट के बाहर, तो अंग्रेज को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जज इज ए जज एंड दिस मैन इज ऑर्डिनरी पर्सन, जिसके वो पैर छू रहा है। तो किसी ने पूछा कि व्हाई सो, व्हाई दिस जज इज टचिंग द फीट ऑफ दिस ओल्ड मैन। तो उन्होंने कहा कि दिस ओल्ड मैन इज हिज ताऊ जी, जिसे कहते हैं ना, पिता के बड़े भाई, तो ही इज अंकल एंड देयरफॉर ही इज टचिंग द फीट बिकॉज़ ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ हिज फादर। तब उसने एक कमेंट किया था, इंडिया कल्चर विल नेवर बी सबड्यूड, हिंदुस्तान की संस्कृति को जीता नहीं जा सकता। और इसलिए उन्होंने कहा इस संस्कृति को हम विसंस्कृति कर दें, डीकल्चराइजेशन कर दें। और डीकल्चराइजेशन के लिए उन्होंने कहा एक ही सूत्र है कि हम इनके अंदर जो इनका आत्मगौरव है, जिससे ये बड़े प्रसन्न रहते हैं, किसी तरीके से हम इनके मन में यह भावना भर दें कि ये हीन है, इनकी जो भारतीय व्यवस्था है ये अपने आप में हम लोगों के मुकाबले कहीं बहुत पीछे है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूले को माना जाता है 3E। 3E का मतलब है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंग्लिश। उन्होंने कहा देखो भाई, आप अगर पढ़ोगे रोजगार पा जाओगे, पढ़ोगे वो भी अंग्रेजी पढ़ोगे रोजगार पा जाओगे,
तो रोजगार पाने के लिए अंग्रेजी और पढ़ाई और अंग्रेजी में पढ़ाई, धीरे धीरे यहाँ तक बात आ गई। तो उसकी वजह से पूरे देश में आपने देखा, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य, एक जमाने में ये कहा जाता था कि अंग्रेजों का जो राज्य है वहाँ सूर्यास्त नहीं होता, बहुत लंबे दूरी तक अंग्रेजों का राज्य है। तो उन्होंने ये जो 3E का फॉर्मूला था, जिसमें उन्होंने हमारी भाषाएं समाप्त की, हमारी संस्कृति समाप्त की, हमारी सारी जो अपनी दृढ़ मान्यताएं थी, जो हमारी स्वस्थ परंपराएं थी, जो हमारे पास में अपनी लीजेसी थी, वो समाप्त हुई। और सबसे बुरी बात हुई कि हम अपने ही राष्ट्र गौरव को भूलकर अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण इस अर्थ में दिया जाता है कि अंग्रेजी की किताब में G फॉर जेंटलमैन लिखा होता है। बच्चों को जो ककेहरा पढ़ाया जाता है ना, अल्फाबेट, तो G फॉर जेंटलमैन। और जेंटलमैन की जो तस्वीर बनी होती है उसमें वो देखते हैं कि एक आदमी कोट पैंट पहने है, टाई लगाया हुआ है, सूटेड बूटेड सा आदमी है। तो उस छोटे से बच्चे के मन पे तस्वीर आती है कि जेंटलमैन इज वन हु बियर्स द सूट, हु बियर्स द बूट्स, है ना, हु बियर्स ए टाई। और जब वो देखता है अपने बाप को, अपने ताऊ को, अपने दादा को, अपने गली मोहल्ले के लोगों को जो अपने धोती कुर्ता पजामा सामान्य रूप से रह रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि दीज पीपुल आर नॉट जेंटलमैन। क्योंकि जेंटलमैन तो वो होता है जो सूट वूट पहनता है। और इसलिए उसके मन में अपने परिवार के लोगों के प्रति, अपने परिवेश के लोगों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति एक घृणा का भाव आता है कि ये सब लोग घटिया हैं। बढ़िया वो हैं, जेंटलमैन वो हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी व्यवहार बुलाते हैं और अंग्रेजों के वस्त्र आभूषण पहनते हैं। और धीरे धीरे आपने देखा कि हमारी संस्कृति का विलोप हुआ। हम लोग, दुर्भाग्य की बात है, अपने हिंदुस्तानी महीने भूल गए, हिंदुस्तानी दिन। आज अगर आप अपने घर में छोटे बच्चे से पूछें कि शनिवार क्या है तो उसे नहीं मालूम है, सैटरडे ही नोज। आज जो है वो उसे कहो 69 तो वो जानता है, और अगर आप 69 कह दें तो उस बेचारे को पता नहीं है 69 क्या होता है। तो वो अपनी भारतीयता से बहुत दूर हो गया। तो इस नई शिक्षा प्रणाली में एक प्रयास है कि फिर से हम अपने भारत की ओर लौटें, अपनी जड़ों की ओर लौटें, और उसका एक माध्यम होगी शिक्षा। और इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक योजना बनाई कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे को मातृभाषा में दी जाएगी। वरना अभी तक ये होती है कि जो पहली किताब बच्चे के हाथ में दी जाती है वो अंग्रेजी की किताब होती है। हम लोग जब पढ़ा करते थे, हमारे जमाने में भी अंग्रेजी दर्जा 6 से मिला करती थी, दर्जा 5 तक हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे। छठे में पहली दफा हम लोगों को 4 लाइन की कॉपी अंग्रेजी लिखने के लिए, जी की निब का होल्डर और अंग्रेजी की किताब मिलती थी। तो हम वहां पे A फॉर एप्पल सीखते थे। आज बच्चे को छोटे आ से अनार बाद में सिखाया जाता है, A फॉर एप्पल पहले सिखा दिया जाता है। तो उसके मन में, और हमारे संविधान में भी मजेदार बात लिखी हुई है कि अगर कहीं सरकारी वक्तव्यों में अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में अंतर पाया जाए तो अंग्रेजी की भाषा का जो मूल है वही प्रिवेल करेगा, हिंदी का नहीं। आप देखिए ना, अंग्रेजी की प्राधान्यता हमने संवैधानिक रूप से इतनी स्वीकार की हुई है कि इवन वी डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी ट्रांसलेशन टू दैट एक्सटेंट कि हम उसको जो है वो स्वीकार करें। एनीवे, तो ये जो स्थिति थी इसमें परिवर्तन आएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखेंगे। और जो शुरू में बच्चे को 2 परेशानियां होती हैं, एक वो विषय समझने की उसकी कठिनाई होती है और दूसरा अंग्रेजी समझने की कठिनाई होती है। मैं चूंकि लंबे समय से शिक्षा जगत में हूँ, पिछले 55-70 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ लगातार। एक बात होती है जब अपने लोग MBA बच्चों से मिलते हैं और उन MBA के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उनको लगता है कि साहब वो बड़ी मुश्किल की बात है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ें तो उसमें अंग्रेजी पढ़ें, क्योंकि वो अंग्रेजी से थोड़े से वो होते हैं। तो उनको भाषा एक बाधा लगती है अपना ज्ञान अर्जन करने में। आपने देखा कि ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसमें भाषा की समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया गया और उन्होंने कहा मातृभाषा में आप चाहे जहां तक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 21वीं शताब्दी के भारत की नींव रखने वाली शिक्षा नीति है, यानी भारत का नव निर्माण होगा। एक डिजिटल इंडिया हमारे सामने आ रहा है, एक नया भारत हमारे सामने आ रहा है जिसमें कि हम अपने देश के बच्चों को
बिल्कुल एक नए तरीके से तैयार करेंगे, जहां हमारी शिक्षा जो है वो उन्हें रट्टू तोता नहीं बनाएगी, बल्कि उनको कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाएगी। उनके मन में जो विषय है उस विषय का अर्थ भीतर उतरेगा, उनके वो इंटरलाइज करेंगे। और इसलिए ये एक अच्छा प्रयास है कि हम केवल शिक्षा के माध्यम से ये इनके प्रकार परीक्षा पास कर लें। मतलब ना, बड़े मजेदार अंतर आपको मैं बताऊं, पहले हम लोग विद्यार्थी कहा करते थे, विद्यार्थी के बाद में शिक्षार्थी हो गया, और अब जो कॉलेज में आने वाला बच्चा है वो शिक्षार्थी भी नहीं है, वो परीक्षार्थी हो गया। और उसे केवल परीक्षा पास करने का कोई नुस्खा समझ में आ जाए तो वो समझता है कि अपना एजुकेशन लाइफ पूरा हो गया। और इसीलिए जो शॉर्टकट्स हैं, जो चल पड़े 5 सवाल 7 सवाल, ये वो ऑब्जेक्टिव नोट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो उस बच्चे के पास में कागज की डिग्री तो आ जाती है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं आता। मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, जब हम लोग हाई स्कूल में थे, उस समय हाई स्कूल पास करना बड़ी टेढ़ी खीर होती थी। वो एक बार था जबरदस्त। हाई स्कूल पास करने का मतलब है कि अब उसे एंट्रेंस कहते थे, तो वाकई शिक्षा जगत में आपकी एंट्री हो जाती थी, वो दरवाजा था एंट्रेंस, जहाँ से शिक्षा जगत में घुसते थे। तो हाई स्कूल में अक्सर रुक जाते थे। तो हमारे प्राचार्य जी जो थे उसमें वो एक बात कहते थे, अगर लड़का हाई स्कूल फेल है तो कम से कम दर्जा 9 पास होने की तो लियाकत उसमें है, क्योंकि ही हैज पास क्लास 9, देयरफॉर ही हैज एंटर्ड इन क्लास 10। तो उस इम्तिहान में अगर वो फेल हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन आज की स्थिति है कि अगर वो बीए फेल है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें इंटर पास की योग्यता तो होगी ही। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं उनके आधार पर ज्ञान हमें मिले, इसके आधार पर कुछ आपने देखा परीक्षा प्रणाली का कुछ इस तरह का वो है कि लोग बस इम्तिहान देते हैं, पास हो जाते हैं, ज्ञान से उनका दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। तो नई शिक्षा नीति में एक तो ये जो आपका फाउंडेशन है, हमने जो 10+2 था उसको बदल के 5+3+3+4 किया, जिसकी वजह से उस बच्चे को 5 साल का जो 3 साल का आंगनवाड़ी, 3 साल का और 2 साल का प्रिपरेटरी कोर्स तैयार करके आगे हम बढ़ाएंगे। वो प्राइमरी एजुकेशन उसकी होगी, फिर 3 साल पढ़ेगा, फिर 3 साल उसका मिडिल होगा, उसके बाद में फिर आपका सेकेंडरी, और सेकेंडरी को हमने 4 साल में कर दिया, कक्षा 9, 10, 11, 12। और उन्होंने एक बढ़िया बात ये की है कि अब कोई स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी कि ये आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा। एक बच्चा साइमल्टेनियसली, अगर उसकी इंटरेस्ट किसी कॉमर्स के विषय में है तो साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी कोई कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स का विद्यार्थी होते हुए साइंस पढ़ सकता है। और इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी आई। और सबसे बड़ा काम यह हुआ कि शिक्षा में ये जो एक रेगुलेटरी एजेंसीज थी इनको कम कर दिया गया। जो नियामक संस्थाएं थी, यूजीसी, एनसीईटी और ये दुनिया भर की जो आपके वो हैं, इन सबको समाप्त करके एक कमीशन बना दिया गया जिसका नाम है आपका कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अलग अलग काम करने वाले उन्होंने 4 खंड बनाए हैं। एक कोई फंडिंग को देखेगा, एक मॉनिटरिंग को देखेगा, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री कॉलेजेस में उच्च शिक्षा में परिवर्तन आया, एफिलिएशन के सिस्टम में काफी तब्दीली की गई है। अब जो है वो कॉलेजेस को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। और जो बड़े कॉलेज है उन्होंने एक हम ये भी किया कि विश्वविद्यालय में, अच्छा रोहिलगढ़ विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या बहुत हो गई है। कानपुर विश्वविद्यालय में 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय है जो महाविद्यालय है जो एफिलिएटेड है। आगरा में 800 के करीब विद्यालय हैं जो एफिलिएटेड है। इनके सब ऊपर अनुशासित बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब उन्होंने कह दिया 100 से ज्यादा महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय के साथ अटैच नहीं होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे। छात्र संख्या भी उन्होंने सीमित कर दी है। अब जैसे हमारा बरेली कॉलेज है, बरेली कॉलेज में 25,000 30,000 लड़का पढ़ा करता है, तो निश्चित रूप से वो अनरूली स्टेज हो जाता है। और उन्होंने कहा 3,000 से ज्यादा छात्र एक महाविद्यालय में नहीं होंगे। इससे उच्च शिक्षा का निश्चित रूप से स्तर सुधारना चाहिए। और एक काम उन्होंने किया है कि उच्च शिक्षा का स्तरीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन से और एक बहुत बढ़िया काम हुआ है कि अब जो निजी क्षेत्र की शिक्षा है, जिसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन कहते हैं, उसमें और पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन में सरकार की दृष्टि से कोई भेद नहीं होगा। सरकार सबको समान बर्ताव देगी। और जो विश्वविद्यालय थे अब तक कई प्रकार के होते थे,
उनको जो है वो उन्होंने हटा के केवल एक ही बात होगी, वो होगी विश्वविद्यालय। अब कोई यूनिवर्सिटी जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी 2B वाली या आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो ये सारा खत्म करके अब उन्होंने कहा कि सीधे सीधे केवल यूनिवर्सिटी होगी। और सबसे बड़ी बात, अब चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सोसाइटी की ओर बढ़ गए हैं, अब हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है वही नहीं, आधारभूत शिक्षा के लिए भी अब इस समय कोरोना के काल में आपने देखा सारे विद्यालय महाविद्यालय बंद रहे हैं, लेकिन वहां से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, इसमें हम अपने बच्चों को अपने प्राध्यापकों और अध्यापकों के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सिखाएंगे। और ताकि इस समय आप देख रहे हैं कि एक दौर आया है वो है इंडस्ट्री 4 का। इंडस्ट्री 4 एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो स्टेज है जहाँ के हमारी जो है इंटरनेट ऑफ गुड्स, हर हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेट से जुड़ जाएगी। हमारा सारा जो है वो सिस्टम इंटरनेट से जुड़ जाएगा। उदाहरण देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे हम अपने घर में हैं और घर से हम बाहर जाते हैं तो हम अपना टेलीफोन, हम अपना टेलीविजन, पंखे, चूल्हा ये सारा बंद करके निकलते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि अब आपका जो कार में बैठे और आपको याद आया यानी बिजली का पंखा शायद खुला रह गया है, तो आप बैठे बैठे अपने वही हाथ के मोबाइल से वहां से अपना पंखे का स्विच ऑफ कर सकते हैं, AC ऑफ कर सकते हैं। चूल्हा जलता रह गया है तो उसका जो है चूल्हा बंद कर सकते हैं। और इस तरीके से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सोसाइटी है कि जब आप वापस लौट रहे होते हैं तो जहाँ 2-1 किलोमीटर रह जाते हैं अपने घर से, तो आपको लगता है ताला खुला हुआ मिले, तो आपने ताला यहीं से बैठे बैठे खोल लिया, अपना AC खोल दिया ताकि आप जब घर पहुंचे तो आपको कमरा ठंडा मिले। ये जो व्यवस्था हो गई है ये इंडस्ट्री 4 के तहत अब आ गई है। इसमें 3D प्रिंटिंग वगैरह आ गया। बहुत जबरदस्त एक परिवर्तन। उस परिवर्तन के साथ मैच करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन चाहिए, क्योंकि वो जो एक टेक्नोलॉजी आएगी उस टेक्नोलॉजी से मैच करने के लिए हमें आदमी चाहिए जो टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपर्ट हो। इसलिए शिक्षा नीति में तकनीक को भी जो है वो बहुत बड़ा आधार दिया गया है ताकि हम बदलती दुनिया के साथ अपने आप को बदलें। टाइम्स बदलते हैं, दिमाग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और यदि हम नहीं बदलते तो फिर हम बदल दिए जाते हैं। चेंज मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, इफ यू डू नॉट चेंज यू विल बी चेंज। तो इसलिए आप अगर अपना एग्जिस्टेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बने रहें, तो बदलते हुए समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करें। और ये जो आपका आज का युग है, इस युग में इस नई शिक्षा नीति में जो नवीनता है उसमें एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि कोशिश की गई है कि हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति ये होगी, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने की व्यवस्था शासन करे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए पढ़ने से रह जाता है कि उसके माता पिता के पास साधन नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये शासन का बहुत बड़ा अपराध है। शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसमें पढ़ने की इच्छा है, तो उसकी पढ़ने की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये सरकार का एक दायित्व है। तो जैसे हम लोग राइट टू एजुकेशन कहते हैं। सॉरी सर, डिस्टर्बेंस के लिए माफ कीजिएगा। हमारे पास जस्ट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सर 1 या 2 मिनट बचे हैं सर। सो सर जस्ट हम एक ब्रीफ में सर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सर। ये सर न्यूज शर्मा सर, हमारा क्वेश्चन सर आपके लिए। न्यूज चैनल पे भी सर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये बहुत ये एक डाइवर्स क्वेश्चन था, फैला हुआ क्वेश्चन था। जस्ट हमारे पास 2 मिनट बचे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन के सिलेबस को चेंज करते करते, करिकुलम को चेंज करते करते इस बार पूरा एक सिस्टम ही चेंज कर दिया गया सर। तो सर इसमें जस्ट 1-2 लाइन में सर कोई ब्रीफ। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ, अगर परिवर्तन 30 मील में किया जाता है तो वो परिवर्तन वास्तव में परिवर्तन प्रभावी हो नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि परिवर्तन जो हो ग्रास रूट लेवल से हो, जिसे कहते हैं ना
होलसम चेंज, से कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। अगर आप मरम्मत करते हैं, एक एक किसी टुकड़े की मरम्मत कर दी, तो बाकी की चीज खराब हो जाने के कारण, मैं आपको जैसे बताऊं, अगर हमारी साइकिल में कोई खराबी आ जाती है, एक पेज आपने बदल दिया, दूसरा पेज डाल दिया, वो मिसमैच हो रहा है और इसकी वजह से फिर दूसरा उसमें और दोष आ जाएगा। पुरानी मशीनों की मरम्मत कराने के बाद ये हम सबका तजर्बा है कि उनमें जो दूसरी मरम्मत की जाती है, उससे एक चीज का तो दोष निवारण हो जाता है, मगर दूसरी चीजों में उसके, क्योंकि उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, आप है ना, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसलिए जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो ये कहती है कि रिपेयर्स की बजाय रिप्लेसमेंट की ओर जाइए। रिपेयर्स जो है वो मामूली तौर पे आपको कुछ वो दे सकती हैं, फौरी तौर पे राहत, लेकिन अगर आप परमानेंट राहत चाहते हैं, तो जो चीज अब खत्म हो रही है, अपने आप फूटती जा रही है, तो उसको बजाय इसके कि आप उसमें रिपेयर करें, उसे रिप्लेस करें। आप अपने मकान में भी जब कभी देखते हैं कि अगर छोटा मोटा अल्टरेशन कराते हैं, बाद को सब घरेलू को लोग बैठ के फैसला करते हैं, अरे इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि पूरे डिमोलिश करा के यार रीबिल्डिंग कर लिया होता, तो हमारा मकान हमारे नए नक्शे के अनुरूप बेहतर बन गया होता। क्योंकि एग्जिस्टिंग आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको मरम्मत करने की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती, कुछ लिमिटेड बातें हैं जो आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि छोटे छोटे परिवर्तनों से नहीं, ऑल टुगेदर चेंज जैसे कहते हैं ना, आप जो कह रहे हैं केवल सिलेबस बदलने की बात नहीं, पूरा सिस्टम ही बदला जाना चाहिए। अब आपको देखिए आगे आने वाले समय में टीचर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम बदला है, और सिस्टम बदलने के पीछे जब तो टीचर नहीं बदलेगा, स्टूडेंट तो टेम्परेरी फेनोमेना है, वो 2 साल 4 साल 5 साल रह के निकल जाता है, और टीचर परमानेंट फेनोमेना है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो बेटे अब टीचर में आने वाला है। हर कोई आदमी टीचर जैसे अब आसानी से बन जाता है, नहीं बन पाएगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि सिस्टम में ही परिवर्तन आवश्यक है। हम केवल सर वी आर सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमारा टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, आई एम रियली ऑनर्ड। Sir, we are thank you. We are grateful to you that you are here, and we want you also to be here next time. Any time. So हम लोग Thank you, Law Scholars Independent Society and the members of this society for giving us and my an opportunity before you all. I hope your society will be doing good, work in times to come, and ऐसे programs और lectures आप कराते रहेंगे. Thank you so much, sir, for your best wishes. Thank you. Thank you. And I'm very much obliged to both our speakers for sharing their knowledge with us, and all our participants for their cooperation. Thank you. I'm honored. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब चैनल्स पे दे देंगे। आप पूरी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को अपडेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम अपडेट कर देंगे आपको। देन आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू जो भी है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ कोशिश करेंगे कि हम उसको वहाँ पे सुलझा पाएं। और थैंक यू सो मच टू एनएल शर्मा सर, थैंक यू सो मच टू KCMT टीम, थैंक यू सो मच टू विनय खंडेलवाल सर, Mr. Mukul, Mr. Rashmi ma'am, Prerna, Anuradha ma'am, Saurabh sir, everyone, Mr. Anurag Pradhan, everyone. Thank you so much. Okay, Mr. Siddharth Pandey also. Okay.